Hello and welcome everyone to this lecture of Company Law. In this lecture, we are going to discuss about Section 138 of the Companies Act, which covers the provisions for internal audit. Before getting into the provisions, let us have a small context of what is basically an internal audit. So internal audit is basically an independent appraisal of the company's functions held by the company itself. So that is why it is called as internal audit. That means a team or a person is appointed by the company. He may be an employee or not an employee of the company, but he will be carrying out the audit of different functions of the company on different parameters that has been agreed upon with the board of directors and the audit committee. Okay. Now, why is this internal audit important for the company? Internal audit basically ensures the internal controls which have been implemented by the management, whether they have been implemented properly and whether they are operating effectively or not. Second is the risk management part. See, a company will have different risk attached to it. One may be a business risk, there may be a financial risk, there may be technological risk, correct? There may be compliance risks. All these risks have to be identified by the company and they have to find and or devise a plan by which they can mitigate such risks. So internal audit is one of the tools that the company can use by which the such risk can be identified. First of all, they may be assessed, identified, and mitigated. Also, if the internal controls are operating effectively and the risk management is taken care of, then automatically the company's operational efficiency will also go up. Also, internal audit look into streamlining of can look into streamlining of companies' processes. It can look into whether the workforce is utilized, workforce utilization is optimum or not, resource utilization is optimum or not. All these things will improve the operational efficiency of the company. So internal audit also caters to an operational efficiency. Last but not the least, there are many laws which are applicable to the company, like company law itself. There will be SEBI laws which are applicable if the company is a listed company. There will be labor laws which are applicable for the workforce which are working in the company. All these laws, whether they are complied to or not, whether the laws and rules and regulations are followed by the company or not, and whether the reporting to the stakeholders, the regulators, is being done within the timeline or not. Because if there is violations on any of this, there will be penalty which will be levied to the company, and that will also hamper the goodwill of the company. So that is why internal audit will also be looking into the compliance part, whether the compliance of different laws and regulations are being properly followed by the company or not. So these are the four major parts where internal audit is important for the company. So, if I conclude it, what is the purpose of internal audit? Then we can say the internal audit, first of all, assesses internal systems and controls of the company. After assessment, it would identify the weaknesses, vulnerabilities, and identify whether there are any frauds which are happening or whether there is a risk of fraud which is happening. Okay, by mitigating all these risks and by putting in more controls so that the vulnerabilities do not hamper the company's operational efficiency, what will happen is that the company's operational efficiency will enhance. Okay, once the once the internal audit is done, once the internal audit is done, the internal auditor will submit a report to the stakeholder. Who will be the stakeholder over here? Since it is an internal audit, it is an internal tool for management of the company. So you do not have to publish this internal audit report to any outsider or to the public itself. It will be given to the audit committee of the company and the board of directors.
Okay. So overall, the purpose of the internal audit is to enhance the organizational performance. So who can be appointed as an internal auditor as per the legal provisions? Now we have understood the context. We are now coming to the legal provisions. Legal provision, first thing we have to understand is who can be appointed as an internal auditor. It's very simple that the internal auditor can be a chartered accountant, it can be an cost accountant, or any person whom the board of directors entrusts such duty to. The person may be a chartered accountant, the person who is appointed may be a cost accountant, the person who is appointed may not be qualified, but he would be a person who is appointed by the board of directors because he has some knowledge in the processes of the company. Okay. Now, one more important point to note over here is that the person who is appointed, if he is a chartered accountant, if he is a chartered accountant or he is a cost accountant, he may or not be engaged in practice. It is not necessary that such person shall be in practice. So अभी तक हमने जो भी समझा, इंटरनल ऑडिटर का हमें कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आ गया। लीगल प्रोविजंस जो कह रहा है वो सेक्शन 138 सबसेक्शन 1 में कह रहा है, वो कह रहा है कि आप जिसको इंटरनल ऑडिटर करके अपॉइंट करोगे वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो। दूसरा, इनके अलावा भी आप किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हो। कौन अपॉइंट कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है एज इंटरनल ऑडिटर। ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो भी पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो सकता है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो या कंपनी का एम्प्लॉय ना हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये कोई आउटसाइडर ही होना चाहिए। ये आप कंपनी का एम्प्लॉय को भी अपॉइंट कर सकते हो एज एन इंटरनल ऑडिटर। यहाँ तक हमें सब कुछ समझ में आया है क्या? तो ये देखो, लास्ट वाला जो नोट लिखा है मैंने यही लिखा है कि सच पर्सन अपॉइंटेड मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ओके। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या ये इंटरनल ऑडिट का जो प्रोविजन है, क्या ये सारे ही कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है? तो नहीं, ये सारे कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि जिन कंपनीज के लिए ये क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया हुआ है सेक्शन 138 में, उन्हीं को इंटरनल ऑडिट का प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा, उन्हीं को इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब हम जाते हैं सेक्शन 138 सबसेक्शन 1 रेड विथ रूल 13 सब रूल 1 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 में। ओके। अब ये क्या क्या कह रहा है हमें? सबसे पहला पार्ट तो वेरी सिंपल है कि अगर कहीं भी आपका लिस्टेड कंपनी है, आपका कंपनी कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है, देन इन दैट केस आपके लिए मैंडेटरी है कि आप इंटरनल ऑडिट करेंगे। ओके। वेदर और नॉट यू, देर इज नो क्राइटेरिया, यहाँ पे किसी भी क्राइटेरिया के बारे में बात नहीं की जा रही है। अगर आप, सिंपल सा बात है यहाँ पे, अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, दिस पार्ट इज क्लियर नाउ। ये तो बात हुई हमारी लिस्टेड कंपनी की। अब जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इनमें क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? इफ एनी ऑफ द बिलो कंडीशंस इज मेट, इफ एनी ऑफ द बिलो कंडीशंस इज मेट, देन द इंटरनल ऑडिट विल बी एप्लीकेबल टू सच कंपनीज। एनी ऑफ द बिलो मतलब इन चार कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन भी ट्रिगर हो जाती है। इन चार कंडीशन में से एनी वन कंडीशन ऑल्सो इज ट्रिगर्ड, देन कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। ओके। तो ये चार कंडीशंस क्या है ये हम समझ लेते हैं अभी फिलहाल। फर्स्ट कंडीशन इज रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। द कंडीशन क्राइटेरिया इज वेरी वेरी क्लियर that if the paid up share capital of the company is 50 crores or more, if the paid up share capital of the company is 50 crores or more during the preceding financial year. So all these conditions are related to preceding financial year. If it is met in the preceding financial year, तो ये करंट ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। ओके। सो ये कंडीशंस याद रखना, ये सारे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहला कंडीशन हमने क्या कहा? शेयर कैपिटल के बारे में कहा। और शेयर कैपिटल में क्या कहा गया है कि अगर आपका 50 करोड़ या मोर, कितना? 50 करोड़ या मोर का आपके पास क्या है?
share capital है, paid up share capital है during the preceding financial year, then in that case the internal audit provisions will be applicable to such company. Okay. Second point ये कहा गया है कि टर्नओवर के बारे में, कि टर्नओवर अगर कंपनी का 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, तो इन दैट केस आल्सो व्हाट विल हैपन इज दैट, in that case also in that case also internal audit will be applicable. थर्ड पॉइंट ये दिया है कि लोन्स एंड बोरोइंग्स के बारे में। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। लोन्स एंड बोरोइंग्स अगर आउटस्टैंडिंग है कंपनी का, अगर क्या है, आउटस्टैंडिंग है कंपनी का, कितने का आउटस्टैंडिंग है, इज मोर इक्वल टू और मोर देन 100 करोड़, इक्वल टू और मोर देन 100 करोड़। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, अगर आपका जो लोन्स एंड बोरोइंग्स है ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू और मोर देन हाउ मच, 100 करोड़, देन इंटरनल ऑडिट आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। लिस्टेड कंपनीज को तो डायरेक्टली एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड कंपनीज में ये 4 कंडीशंस है। हमने अभी तक कितने कंडीशंस किए, हमने 3 कंडीशंस कर लिए। अब लास्ट कंडीशन ये है कि अगर कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स मतलब क्या, कंपनी ने डिपॉजिट्स कलेक्ट किए हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स, फ्रॉम पब्लिक, और वो अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ओके, आउटस्टैंडिंग है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, 25 करोड़ और मोर का आउटस्टैंडिंग रहेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देन इन दैट केस आपको इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। तो कितना है ये, 25 करोड़ और मोर। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। 4 कंडीशन क्लियर हो गया। शेयर कैपिटल कितना, 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर कितना, 200 करोड़ और मोर, लोन्स एंड बोरोइंग्स कितना, 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स कितना, 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, ये पॉइंट्स क्लियर है। तो लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी क्लियर हो गया। अब एक कैटेगरी ऑफ कंपनी का बाकी है, वो कौन सा है, वो है प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में एक कॉन्सेप्ट समझिए कि सेक्शन टू सबसेक्शन 68 जो है, डेफिनेशन जो है, ओके, द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी क्लियरली सेज दैट द कंपनी कैन नॉट raise money through any subscription by पब्लिक। इसका मतलब क्या है कि कंपनी, प्राइवेट कंपनी में दो पॉइंट्स इस पर्टिकुलर डेफिनेशन की वजह से हट जाते हैं क्राइटेरिया में से। एक है जो पेड अप शेयर कैपिटल, क्योंकि पब्लिक से कोई शेयर कैपिटल लिया नहीं गया है, तो इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। और दूसरा, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स वाला जो पार्ट है, वो भी, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है, ये प्रोहिबिटेड है फॉर एन प्राइवेट कंपनी, एंड हेंस दिस इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल टू दिस क्राइटेरिया। ओके, सो बचते खाली दो ही है, ये वाले पार्ट में से, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में शेयर कैपिटल और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स को हटा दो, बचे क्या, टर्नओवर और लोन्स एंड बोरोइंग्स। यही दो पॉइंट यहाँ पे बच गए। क्राइटेरिया सेम टू सेम है। टर्नओवर अगर कितना, 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या लोन्स एंड बोरोइंग्स कितना हो, 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लोन्स एंड बोरोइंग्स के लिए अगर ये क्राइटेरिया मीट होता है, देन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा एज पर सेक्शन, विद सेक्शन 138। ओके, तो सेक्शन 138 एप्लीकेबल कब कब होगा, ये क्लियर हो गया हमें। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिर से आपको ये बना दूं, केबल टाइप बना दूं, कि इंटरनल ऑडिट कब कब होगा, अगर लिस्टेड कंपनी है तो मैंडेटरी हो गया, अगर अनलिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो फिर से क्राइटेरिया है कि आप 4 क्राइटेरिया को चेक करो। आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, अगर वो 50 करोड़ से ज्यादा हो,
और आपका जो टर्नओवर है कंपनी का, इफ इट इज मोर देन और इक्वल टू 200 करोड़, और आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स जो है, करेक्ट, इफ इट इज मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़, और आउटस्टैंडिंग deposits if it is more than or equal to 25 crores. Okay, more than or equal to 25 crores. In any of this situation, for an unlisted public company, if any of this are met, then in that case internal audit क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा. एट द सेम टाइम प्राइवेट कंपनी के लिए दो ही कंडीशंस रहेंगे. एक होगा टर्नओवर का, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 करोड़, एंड दूसरा होगा आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स का. ठीक है, और ये कितना, मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़. सो दिस इज द बेसिक structure of the criteria that has been given under section 138. I hope this is very very clear. Now let us go through some illustrations, some scenarios. Scenario building कर लेते हैं इसका. ओके, कि अलग अलग सिनेरियो, यहाँ पे मैंने 10 सिनेरियो यहाँ पे लिखा हुआ है. आप कोशिश कीजिए कि आप इसका आंसर्स नहीं देके और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. बहुत ही सिंपल है, हम करते हैं अभी. सबसे पहले तो फर्स्ट सिनेरियो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सिनेरियो हमें दिया हुआ है कि लिस्टेड कंपनी है. कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है. उसका कैपिटल दे दिया, टर्नओवर दे दिया, लोन्स एंड बोरोइंग दे दिया. हमें कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे. क्लीन 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 एंड क्लियरली हमको पता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन लग जाएगा, क्योंकि ये कंपनी कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है. तो इसमें कोई क्राइटेरिया देखने का जरूरत नहीं है. It is mandatory for all the listed companies. Now the next four scenarios are unlisted public company. Let us understand this next four scenarios. सबसे पहले सिनारियो में क्या दिया है कि कैपिटल कितना है, 55 करोड़ है, टर्नओवर कितना 180 करोड़ है, और लोन्स एंड बोरिंग्स कितना दिया है, 60 करोड़ है. अब जो अपना जो कैपिटल देखिए आप, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ का क्राइटेरिया है, ये मीट हो गया है. तो यहाँ पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं मीट हो रहा है, टर्नओवर लेकिन ग्रेटर देन 200 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 करोड़ है, तो इसे भी एप्लीकेबल हो जाएगा. नेक्स्ट, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगेन कितना है, 30 करोड़ का पेड अप कैपिटल, नॉट एप्लीकेबल. 160 करोड़ नॉट एप्लीकेबल. लेकिन लोन्स एंड बोरोइंग्स कितना हो गया, मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, इसलिए इसे भी क्या हो जाएगा, इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा. लास्ट वाला पार्ट, यहाँ पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में लास्ट कौन सा है कि 40 करोड़, 180 करोड़, 80 करोड़. तो कहीं से भी कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे मीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके, सो सेक्शन 138 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा इस सिनारियो में. अब सिक्स्थ सिनारियो में हम लोग जा रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनी के सिनारियो है. प्राइवेट कंपनी में हमें ये याद रखना है कि हमें ये तीनों जो है, जहाँ पे कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल का कोई क्राइटेरिया नहीं है. प्राइवेट कंपनी, अगर अगर आपको याद है, अभी हमने हमने डिस्कस किया था कि खाली दो ही क्राइटेरिया है, एक है टर्नओवर और दूसरा है लोन्स एंड बोरोइंग्स. टर्नओवर कितना, मोर देन 200 करोड़, तो ये है मोर देन 200 इक्वल टू 200 करोड़ के ऊपर, एंड हेंस यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है कि टर्नओवर जो है वो तो एप्लीकेबिलिटी में नहीं आ रहा, लेकिन लोन्स एंड बोरोइंग्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़ है, एंड हेंस इस प्राइवेट कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा. और लास्ट में कौन सा है, 10 करोड़ है, 180 करोड़ है, 90 करोड़ है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया, जो दो क्राइटेरिया है उसमें से किसी भी क्राइटेरिया को मीट नहीं किया गया है. ओके, नाउ एक दो और पॉइंट्स है यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी के बारे में ही है ये भी दोनों पॉइंट्स. एक है जहाँ पे टर्नओवर जो है, यहाँ पे लोन्स एंड बोरोइंग्स नहीं है कंपनी का, लेकिन टर्नओवर जो है 200 करोड़ के ऊपर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा. और यहाँ पे टर्नओवर 170 करोड़ है, तो एप्लीकेबल नहीं होगा. तो आई होप द सिनारियोस आर क्लियर टू यू. इससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमें क्लियर हो जाएगा. And I'll also attach the link to this document in the description box, so you can download this notes and you can practice it. Okay. Now the last point which is remaining is in terms of manner and interval of conducting the internal audit. So what is the manner in which the internal audit will be conducted? What are the intervals within which the internal audit has to be conducted by the internal auditor? That is covered under Rule 13(2)
of the Companies Accounts Rules 2014. And what it says is very simple, that audit committee or board of directors will decide in consultation with the internal auditor. So there is no fixed rule कि ये 2 महीने में करना चाहिए, 3 महीने में करना चाहिए, क्वार्टरली करना चाहिए, या हाफ ईयरली करना चाहिए, ईयरली करना चाहिए. ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं दिया गया है by the law. The law specifically states that the audit committee and board of directors, in consultation with the internal auditor, will decide the scope, methodology, किस मेथड से किया जाएगा वो भी ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे. और जो पीरियोडिसिटी होगा, मतलब कब कब इसे करना, किस इंटरवल में इसे करना, कंडक्ट करना, वो भी audit committee or board of directors decide करेंगे in consultation with the internal auditor, and that will be the procedure which they will be following. Okay, so this was very, very simple. In case this lecture was useful to you, so I would request all of you to subscribe to this channel and like this video and share it with your friends. And your likes and subscription would be a source of motivation for me to bring many more such videos to you. Okay, thanks a lot.